Good morning, everyone. Today we will learn about the tautomerism. This is the part of structural isomerism. In the structural isomerism, we learn about functional isomerism, then metamerism, then chain isomer, position isomer, and ring chain isomer. Then after tautomerism. Okay. Now see, it is a type of structural isomer in which one structure convert into another structure where a H plus migrate from one basic site to another basic site. Is it okay? Means in between these two structures, in between the structure, H plus migrate from one basic site to another basic site. As you can see, H plus. This oxygen have no H. What will happen? If H attached to this carbon will migrate to this oxygen, this type of structural isomer are known as tautomerism. Basically, we will discuss about it. Now I'm just giving you an introduction. We will discuss about the tautomerism. Now see, there are 14 type of tautomerism. Basically, there are 14 type of tautomerism, but in our syllabus we have only one type of tautomerism, that is keto-enol tautomerism. But we will learn about four basic type of tautomerism, that is keto-enol tautomerism, nitroacid tautomerism, enamine and imine tautomerism, nitroso-oxime tautomerism. The first is keto-enol tautomerism. Now see what will happen. What I say that H plus migrate from one basic site to another basic site. Now what will happen? This is the acetone, or we can say ketone. Ketone, why we said is ketone enol? Because ketone convert into enol form. This is the keto form. This is enol. Enol means en, double bond, ol, alcohol. Enol, double bonded, and OH4 alcoholic part. Correct? That's what we call is keto enol tautomerism. Now see what will happen. At first, what will happen if we put in a solution or any medium along with acidic, it may be basic medium. What will happen? At first, this H, you know that this H, this carbon is alpha carbon. This all three H attached to this carbon are alpha hydrogen. This carbon is alpha carbon, and all the three hydrogen attached to that carbon is alpha hydrogen, and alpha hydrogens are acidic hydrogen. So in the medium, what will happen? It will remove their H plus, or medium will take the H plus from alpha carbon. Okay, then what will happen? If H plus will removed from carbon, then negative charge will form at carbon. Is it correct? Now see, there is this negative charge is stable by minus some effect of carbonyl group. Is it okay? So what will happen if it supply their electron density? Then double bond formed between carbon and negative charge will appear on oxygen. Now, if you watch, see this. It is the one basic site. This is the one basic site. At first, I am marking it. This is a structure 1, this is a structure 2, this is a structure 3, and this is a structure 4. Now, structure 2 and 3, just focus on the structure 2 and 3. What is happening? Structure 2 have basic site in which negative charge is available on carbon, or we can say carbon is the basic site. In the structure 3, we can say oxygen is the basic site. Correct? Now what will happen? Now this, it can take H plus from the solution because it donate H plus to the solution. It can take H plus and convert into this structure. Correct? Means what is happening? This structure is converting into this structure, and how it is converting, I just explain you. Okay, means finally this structure interconvert into these molecules, and these molecules interconvert into these molecules. Means in the solution, both the structure will exist along with the equilibrium, but their concentration, their percentage will be different. The one which is more stable, their percentage will be more than the another one. Is it okay? Now, what I told you that H plus migrate.
These two structure are what we are saying. These are structural isomer in which H plus migrate from one basic site. This is the one basic site to another basic site. Is it clear what is happening? H plus is transferred from one basic site to another basic site. You can see this is the basic site. We can say this carbon, if we remove H plus, this will be the basic site, and this oxygen will be the one basic site. H plus transfer from one basic site to another basic site, then the structure will generate. These two structures are called structural isomer. Correct? And this type of structural isomerism is called tautomer. Is it okay? That is called tautomer. Now you see these two will exist in equilibrium and their percentage will depend on the stability of these two molecules. And how will it convert? I just explained, I'm explaining it again. Just listen what is happening. In the solution will take the H plus from carbon atom. As it take H plus from carbon atom, negative charge will form at carbon. Then it will participate in resonance with carbon and negative charge will appear on oxygen. Is it okay? Now oxygen will take H plus from medium and convert into the enol form. So this is enol form. This is keto form. Is it okay? This will also go in reverse direction. I'm not saying only not this one will convert in this form and this one will also convert in this form. You can also, we can go in the back side. Just we can remove H plus. We can remove H plus, then this structure will form. Is it okay? Now this will donate their electron pair to this carbon and negative charge will appear at that molecules and it will take H plus and convert into this molecule. Means this form is convert into this form and this form will convert into this form. Is it correct? Okay. Okay. Now see what I want to say. What I just explained that these two forms will exist in the equilibrium state where percentage of both of them, their percentage, this is X, this is Y. X and Y will be different and it may be X will be greater than Y, it may be Y will be greater than X, it may be X equal to Y. That's depend on the conditions. Okay. And X plus Y will be 100%. Okay. Now what I want to ask, that the question will be asked as which form will be the major in the solution, which form will be in the major concentration in the solution. दोनों में से कौन सा मेजर कंसंट्रेशन में सॉल्यूशन में अवेलेबल होगा, मींस किसका परसेंटेज, विच वन विल बी अवेलेबल इन हायर परसेंटेज, एक्स फॉर्म और वाई फॉर्म. Now how will we decide which one will be available in higher percentage? That will be decided by the stability of these two forms. Now what we have to do, we have to compare the stability of these two forms. Can we compare the stability here directly? It will be very difficult to compare the stability directly. So what can we do? See, the best thing we can do, we have to focus on these two structure, structure number 2 and structure number 3. Listen, structure number 2 and structure number 3. Now see, both have the basic site. Structure number 2 have the basic site as the carbon and structure number 3 have the basic site as oxygen. Now we have to compare which basic site is more basic. The one which is more basic, they will have H plus. Okay. If this one will be more basic, then this one will be the major product. If this one will be more basic, means this one will be major product. Is it okay? बेसिकली हमारे पास क्या है, दो बेसिक साइट है. मतलब हम कह सकते हैं कि अगर H प्लस लेने की बात करें इन दोनों में, तो जो ज्यादा बेसिक होगा वो H प्लस लेकर के जाएगा. तो इन दोनों में जो ज्यादा बेसिक है वो H प्लस लेकर के जाएगा, उसी को H प्लस मिलना चाहिए. तो वो जो फॉर्म बनाएगा H प्लस लेने के पास, वो क्या होगा, ज्यादा अमाउंट में बनेगा.
क्लियर है, क्योंकि वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये क्या है, ज्यादा अनस्टेबल है, ज्यादा रिएक्टिव है। ज्यादा दोनों में से अगर ये ज्यादा, ये कम स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, जो कम स्टेबल होगा उसके, सॉरी, जो कम स्टेबल होगा या जिसका बेसिक स्ट्रेन ज्यादा होगा, बेसिक स्ट्रेन ज्यादा मतलब रिएक्टिविटी ज्यादा, तो जल्दी से रिएक्ट करेगा और ज्यादा अमाउंट में फॉर्म करेगा। इज इट ओके? ये आता है, दोनों में से जो ज्यादा बेसिक होगा H प्लस क्या होगा, उसके पास ही जाएगा। इज इट करेक्ट? और जिसके पास H प्लस जाएगा उसके फॉर्म, वो वाला फॉर्म ज्यादा कंसर्न परसेंटेज में अवेलेबल होगा। क्लियर है कि ज्यादा रिएक्टिव है तो ज्यादा रिएक्ट करेगा तो ज्यादा अमाउंट में फॉर्म करेगा। तो अब कंपेयर क्या करने हैं, वी हैव टू कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ सेकेंड एंड थर्ड स्ट्रक्चर। नाउ चेक इट, second structure have resonance and the third structure have resonance, both have the resonance. Is it correct? Now what we have to do, now we have to compare the second structure have minus charge on oxygen, first structure have minus charge on carbon. Is it correct? First have minus charge on carbon, and which one is more electronegative? Oxygen is more electronegative, and we know that more electronegative elements have negative charge will be more stable. The atom which is more electronegative, if that atom contain negative charge, then it will be more stable. Is it okay? बेसिक स्ट्रेंथ में पढ़ा था, फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। दोनों के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ेगी और बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है? तो देखो इन दोनों में, this is more electronegative, this is less electronegative. More electronegative, so that negative charge will be more stable on oxygen as compared to carbon. Since carbon is less stable means more basic, since it is more basic it will have H plus, so it will form this structure. Is it correct? It will form this structure, then this their percentage will be more as compared to this one. Is it okay? And one thing also, we can also go in back direction, I told you that time. Okay, is it okay? So this is more basic, so it will take H plus and form this one, so this one is more stable than this one. So percentage of keto form, generally percentage of keto form will be more than the enol form. That is written here, generally keto form is more stable than enol form. But if factor like resonance, aromaticity, etc. are available in enol form, then the enol form will be more stable. तो क्या कह रखा है, बेसिकली कीटो फॉर्म क्या होता है, इनॉल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है, आपको रीजन बताया, यहां से कैसे निकालने आप वो देख सकते हैं। कीटो फॉर्म क्या है, इनॉल फॉर्म से हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर है? जनरली कीटो फॉर्म जो है वो इनॉल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होता है, मगर अगर एरोमेटिसिटी आ जाए, रेजोनेंस अवेलेबल हो जाए इनॉल फॉर्म में, तो ऐसे कंडीशन में इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म से ज्यादा स्टेबल हो जाता है। उस चीज को हम लोग अभी देखेंगे। क्लियर है? यहां तक समझा? ओके, तो नोट करें इसको पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो इस वाले में एक चीज ये है, ये जो बताया कि परसेंटेज निकालने हैं कौन सा ज्यादा होगा, तो इन दोनों में कौन सा निकला, x1 विल बी मोर देन y। इज इट करेक्ट? ओके, तो हम कैसे डिसाइड करने हैं, तो बताए इनकी स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे, तो दोनों के बेसिक साइट निकाल लेंगे हम लोग, टॉटोमेरिज्म लिख लेंगे, जो पॉसिबल स्टेप्स हो सकते हैं उसके लिए। पॉसिबल स्टेप्स के बाद दोनों बेसिक साइट को फाइंड आउट कर लेंगे। जो ज्यादा बेसिक है उसको H प्लस पहले मिलना चाहिए, तो जो ज्यादा बेसिक होगा वो H प्लस को पहले लेकर के जाएगा, तो उसके H प्लस लेने से जो स्ट्रक्चर बन रहा होगा उसका परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा, तो हम उस टाइप से निकाल सकते हैं। दूसरा क्या तरीका यूज करते हैं हम लोग, बेसिकली इस वाले में क्या कहते हैं कि C डबल बॉन्ड हो, कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है दैट इज मोर स्टेबल देन कार्बन कार्बन बॉन्ड, इस वजह से कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो ये भी एक तरीका है याद रखने के लिए।
दूसरा आप कहीं कंफ्यूज करें। बेसिकली क्या बोला आपको, बेसिकली आपको बताया है कि जनरली आपको अगर कीटोन फॉर्म क्या होता है, इनोल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि कीटोन फॉर्म में C डबल बॉन्ड O के बीच बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, वो ज्यादा स्टेबल होता है कार्बन कार्बन के बॉन्ड में। मगर कहीं भी आप कंफ्यूज करें तो क्या यूज करेंगे, इस कंसेप्ट का यूज करेंगे। क्लियर है? अब आ जाते हैं कि जनरल फॉर्म, क्योंकि हमको इसके अलावा और भी 3-4 फॉर्म देखने हैं, तो हम ना एक जनरल फॉर्म डिराइव करते हैं कि कैसे टॉटोमेरिज्म को जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। सो वी हैव एक्स वाई जेड 3 एटम, इट कुड बी डिफरेंट, इट कुड बी सेम। तो एक्स वाई जेड वी हैव 3 एटम। नाउ what will happen, the double bond will separate from one position to another position and H will migrate from one position to another position. Is it okay? क्या कह रखा है, अगर ये फॉर्म अपने दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन ऑफ H प्लस के एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे माइग्रेट करने की वजह से जो स्ट्रक्चर जनरेट होते हैं उन स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर, और दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर आर कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। इज इट ओके? क्लियर है? चलिए, तो अब मैंने इसको बाकी से कंपेयर करके देखूं, तो कीटोइनॉल किस केस में कंपेयर करके देखें, तो दिस इज ऑक्सीजन, मैंने एज्यूम कर लिया दिस इज वाई एक्स। ओके, डबल बॉन्ड, इस कार्बन को हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया y, और इस कार्बन को हम क्या एज्यूम करते हैं z। इज इट ओके? बाकी यहाँ पे क्या रखा, एक H को रखा, जो H हमने यहाँ लिख रखा। क्लियर है यहाँ पे? अब क्या होगा, अगर मुझे इसका दूसरा फॉर्म जनरेट करने हैं तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ रख देंगे, डबल बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करा देंगे। तो वही चीज देखिए, यहाँ पे ये क्या हो गया x, और यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, H लगा दिया। यहाँ पे क्या आ गया है, कार्बन आ गया, कार्बन जो था वो अवेलेबल है, और डबल बॉन्ड क्या हो गए, सॉरी दिस इज y, कार्बन ये y है ना, दिस कार्बन इज y, दिस कार्बन इज y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, Z आ जाएगा। क्लियर है? सेम चीज ऊपर अवेलेबल है। क्लियर? तो ये जनरल मेथड होता है टॉटोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आपको कोई सा भी मॉलिक्यूल्स ला करके दे, अगर आप ये कनेक्टिविटी और ये ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। क्लियर है? अब कोई सा भी स्ट्रक्चर ला करके देगा, अगर ये रिलेशन मिल रहा है आपको, तो आप क्या बोलेंगे, दैट इज टॉटोमेरिज्म। ओके ओके। अब एक चीज है कि इन जनरल फॉर्म में हाउ विल बी डिसाइड द स्टेबिलिटी, विच वन विल बी मोर स्टेबल, इन दोनों में विच वन विल बी मोर स्टेबल, हाउ विल बी डिसाइड देयर स्टेबिलिटी, थिंक अबाउट इट। देखो इसमें क्या करेंगे, एट फर्स्ट वी विल अरेंज देम, these three atom will be arranged on the basis of their electronegativity. I'm just assuming x greater than y greater than z. Now if double bond is available between most electronegative element, if double bond is available between two most electronegative element, that structure will be more stable. Clear है? अगर डबल बॉन्ड दो मोस्ट स्टेबल एटम के बीच अवेलेबल है, इन तीनों में से जो दो मोस्ट स्टेबल एटम है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अगर उन दोनों के बीच डबल बॉन्ड अवेलेबल होगा तो वो स्ट्रक्चर क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें कंपेयर करके देखो मैं एक्स वाई, तो क्या बोला है कि ये हमने मान रखा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। क्लियर है? तो एक्स वाई तो क्या है, एक्स और वाई जेड से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दीज टू आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इन दोनों के बीच में जिस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड अवेलेबल होगा वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है? उसी चीज को यहां लगा के देखो, ऑक्सीजन हमने एक्स बोला, देन कार्बन, दिस कार्बन ग्रेटर देन कार्बन एंड दैट इज ग्रेटर देन जेड, इन दोनों का क्या आ गया, इक्वल आ गया है। तो अब देखिए डबल बॉन्ड कहां कहां पे है, डबल बॉन्ड वाई जेड के बीच में और एक्स वाई के बीच में है। कहां पे दो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है। क्लियर है? y और z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है, मगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो किसको इंक्लूड करना चाहिए, ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो किसको इंक्लूड करना चाहिए, x को, एट एनी कॉस्ट x विल बी इंक्लूडेड।
इज इट ओके? डबल बॉन्ड में क्या बोला, ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होने चाहिए। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है यहाँ पे, एक्स है, तो एक्स और उसके साथ कोई भी वाई भी ले सकते हैं और जेड भी ले सकते हैं। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम एक्स वाई ले या तो फिर वाई जेड ले। तो एक्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक्स को तो लेना ही लेना है, तो वो किस स्ट्रक्चर में आ रहा है, इस वाले में आ रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इस वाले से ज्यादा होगी। क्लियर है? तो ये क्या जो हमने यहां बताया, जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, सेम चीज यहां पे जस्टिफाई होता है। क्लियर है? क्लियर? जनरली क्या होगा, एक्स और वाई, एक्स और वाई नहीं, जो दो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे उन तीन में से जो दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे, अगर उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो वो स्ट्रक्चर जनरली क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है? मगर अगर वहां पे रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी और अदर कोई फैक्टर आ जाए तो दूसरा इनोल फॉर्म भी ज्यादा स्टेबल हो सकता है। क्लियर है? यहां तक समझा? इस वाले को नोट करेंगे। नाउ टेल मी, last we covered up to that portion. Okay, general form. Now stability of keto and enol form. तो stability of keto and enol form के लिए आपको मैंने पहले बताया है, generally keto form is more stable than enol form, but if enol form have resonance, aromaticity, etc. or likewise factors, then enol form will be more stable than keto form. Okay, now see this one. This is the keto form because both the structure are available in keto form. Now here we have the enol form. Now which one will be more stable? Now doubt is which. This is the, I assume this is X and this is Y. So which one will be available in higher percentage? So we have to compare this one. So we will write at first all the, we will write their possible structures. This is acetic H now, alpha carbon, alpha H, acetic H. We remove the acetic H in the solution and form this negative charge. This is the one basic site. If it participate in resonance, it will form this structure, and this is the second basic site. This one is the second basic site. तो तो एक बेसिक साइट ये वाला हो गया और दूसरा बेसिक साइट ये वाला हो गया। क्लियर है? अब मुझे क्या करने हैं, तो इन दोनों में कंपेयर करना है कि कौन ज्यादा बेसिक होगा। जो साइट ज्यादा बेसिक होगा ओ एच प्लस लेकर के जो स्ट्रक्चर बनाएगा वो क्या होगा, उसका परसेंटेज ज्यादा होगा। क्लियर है? अब देखिए इस वाले में यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, कार्बन और कार्बन एंड ऑक्सीजन में कंपेयर करें तो ठीक है, कार्बन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका बेसिक स्ट्रेन ज्यादा होना चाहिए। मगर यहां देखो कि इस कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर भी रेजोनेंस में जा सकता है, इधर भी रेजोनेंस में जा सकता है। क्लियर है? बट इसके पास क्या है, रेजोनेंस में जाने के लिए एक ही साइट अवेलेबल है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इससे अब की बार ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? तो इसकी स्टेबिलिटी कम मतलब इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गया, ज्यादा हो गया। क्लियर है? अगर इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, अगर इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो क्या होगा, ये H प्लस लेकर के जाएगा, तो H प्लस किसको मिलेगा, इस वाले। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इस स्ट्रक्चर से ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? इस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इस स्ट्रक्चर से ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? इसलिए इसका परसेंटेज क्या होगा, इस वाले के परसेंटेज से ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा चीज हमने क्या बोला आपको, आप सिंपल रेजोनेंस से देख सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि इस वाले स्ट्रक्चर में कोई रेजोनेंस नहीं है, बट जैसे ही ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच में रेजोनेंस आ सकता है, रेजोनेंस पॉसिबल है। अगर मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस दिखे तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर है? तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इस वाले से ज्यादा होगी। वही चीज को हमने यहाँ पे लिखा है। क्लियर है? अगर इनोल फॉर्म में रेजोनेंस दिख जा रहा है और कीटो फॉर्म में नहीं है तो इनोल फॉर्म क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है? ये भी आप याद रखेंगे, इतना भी याद रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कभी गलत नहीं होगा। बट अगर कंफ्यूज करे तो क्या करें, इनके सारे स्ट्रक्चर लिखे, पॉसिबल स्ट्रक्चर, फिर उस वाले में देखे कौन ज्यादा बेसिक है, जो ज्यादा बेसिक है उसको H प्लस दे दे, जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी मोर स्टेबल एंड देयर परसेंटेज विल बी मोर देन द अदर वन। ओके, चलो ये वाला नोट कर लीजिए।
ये वाला सवाल बताओ, इस वाले में क्या होगा? अब अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, तो देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं, टॉटमर बनाऊं, तो टॉटमर के लिए पहला चीज क्या होना चाहिए? टॉटमर बनाने के लिए पहला चीज क्या होना चाहिए हमारे पास? अल्फा एच होना चाहिए, क्योंकि एसिडिक एच होगा तभी होगा। क्लियर है? टॉटामेरिज्म के लिए क्या होना चाहिए? एसिडिक एच होना चाहिए। तो एसिडिक एच का मतलब क्या है? अल्फा एच। तो टॉटोमर के लिए बेसिक कंडीशन क्या हो गया हमारे लिए? स्ट्रक्चर मस्ट हैव अल्फा एच। इज इट ओके? स्ट्रक्चर मस्ट हैव अल्फा एच। तो देख के बताओ इस स्ट्रक्चर में क्या अल्फा एच है या नहीं। अच्छा, इस वाले में बताओ अल्फा एच था या नहीं? ऑब्वियसली ये क्या है? अल्फा कार्बन। ये क्या था? अल्फा एच बताया था। अल्फा एच इज एसिडिक हाइड्रोजन। क्लियर है? तो वहीं पे हमको क्या ढूंढना पड़ेगा? यहाँ पे अल्फा एच ढूंढना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे भी एक एच है और यहाँ पे भी दो एच है, तो ये एच भी अल्फा एच, ये एच भी अल्फा एच। करेक्ट है? अरे नहीं, ये वाला क्या है? तो अल्फा एच का डेफिनेशन बताया था, दैट विल बी sp3 कार्बन, कार्बन अटैच टू, सॉरी, अल्फा एच हाइड्रोजन अटैच टू sp3 कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच टू डबल बॉन्ड, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन और ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है? बताया था। ओके, तो उसी चीज को देखो, तो ये हमारा अल्फा एच हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। यहाँ पे एच है मगर ये अल्फा एच नहीं है। इस वाले को देखो, तो दिस कार्बन इज sp3 कार्बन डायरेक्टली अटैच विद द कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड, सो दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन, सो दिस हाइड्रोजन इज अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या करने हैं? तो मैं सीधा उस एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखूं, तो इस वाले को क्या लिख सकता हूं? दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। क्या करने हैं? जेड के पास हाइड्रोजन है। अब क्या होगा हमारे पास? हमने बाकी सभी को सेम जगह रखा है और y और x के बीच में अब की बार क्या करें? x के जगह पे h लगा दे तो बॉन्ड टूट जाएगा उन दोनों के बीच में, और कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है यहां से? नहीं तो आप मैकेनिज्म से भी देख सकते हैं इस वाले को। मैकेनिज्म से चलो, तो ये क्या है? एसिडिक एच है, इसको रिमूव कर दे। जैसे ही आप एसिडिक एच को रिमूव करेंगे, यहाँ पे क्या बनेगा? नेगेटिव बन जाएगा, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। ये नेगेटिव इधर को चला, अगर ये नेगेटिव इधर को चलेगा तो फिर क्या बनेगा? डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। क्लियर है? यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब इस माइनस में क्या कराओगे आप? H प्लस सॉल्यूशन में जो H प्लस यहाँ से रिमूव हुआ था वो H प्लस यहाँ पे सप्लाई कर दीजिए, तो कौन सा स्ट्रक्चर आ जाएगा? ऊपर वाला आ जाएगा। क्लियर है? तो आप सीधा वहां से भी स्विच कर सकते हैं और इस तरह से भी लगा सकते हैं। क्लियर है? तो सीधा स्विच क्या करो, ये वाला क्लियर है। अब सवाल क्या था हमारा? किसका परसेंटेज ज्यादा होगा? तो देखो इस वाले में क्या बोला है, यहाँ पे रेजोनेंस यहाँ भी है, रेजोनेंस यहाँ भी है, मगर दिस स्ट्रक्चर इज एरोमेटिक बट दिस स्ट्रक्चर इज नॉट एरोमेटिक। क्लियर है? एरोमेटिसिटी क्या करती है? स्टेबिलिटी को कई सौ गुना बढ़ा देती है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? इस वाले से ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? इस वाले की स्टेबिलिटी क्या होगी? इस वाले से ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसका परसेंटेज इसके से क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर है? समझा? ओके, नोट करें इस वाले को।